Hello, dear students. We have discussed the rules of nomenclature. That means all organisms have been given the scientific names. Uh, all organisms have been given the scientific names. The scientific names. Now, these all organisms which are present on the earth, they have a particular name. They have a particular name. Particular name. And now we try to uh, study about the characteristics of all these organisms present on the earth. We try to study, we uh, try to study, try to study all organisms on the earth. But it is a very complex process. It is not possible. It is not possible. It is not possible. It is not possible to study all organisms. To study all organisms on the earth. It is not possible. In order to study all these organisms, there must be some device, or there must be some mechanism through which we can study all these organisms, and that mechanism, or that device, the uh, the mechanism by which we can study, the mechanism by which we can study all organisms is classification. It is a very important point. That means we cannot study, we cannot read about all the uh, organisms which are present on the earth. So therefore we should have some mechanism by which we can have we can read the characteristics, we can study all these organisms, and that mechanism is classification. Therefore, classification, what is this classification? It is the process of the process of grouping of organisms. What is classification? It is the process of grouping of organisms, the process of grouping of organisms into convenient categories, into convenient categories, into convenient categories by observing easily, by easily observable characters, by easily observable characters. The grouping of organisms into convenient categories by easily observable characters. Easily observable characters का मतलब क्या है कि हम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को, हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स बनाएंगे, और वो ग्रुप्स बहुत सिंपल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे बनाएंगे जो हम इजीली ऑब्जर्व करेंगे, जो हम बहुत आसानी के साथ ऑब्जर्व करेंगे. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा. यहाँ पे ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल the plants,
The categories of the organisms are categorized. The organisms are categorized into plants. ये एक कैटेगरी है. एनिमल्स दूसरी कैटेगरी है. डॉग्स, कैट्स, वीट एटसेट्रा. और ये कैटेगरीज जो है हमने इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे जो है क्लासिफिकेशन की. प्लांट्स को अलग किया है एनिमल्स के साथ, एनिमल्स से बाय इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. प्लांट्स के इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं तो अलग किया है, एनिमल्स के इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं. अब यहाँ पे सपोज we will talk of mammals. मैमल्स के अगर हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दिखेंगे तो आपके माइंड में डेफिनेटली 2-3 कैरेक्टर आ जाएंगे जो मैमल्स से रिलेटेड है. नंबर 1 क्या है? एक्सटर्नल ईयर. ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं. हेयरी बॉडी, द बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है. मेमोरी ग्लैंड्स. तो ये जो है दीज आर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. जब हम ये ग्रुप्स बनाते हैं और इन ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स है इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बुनियाद पे हम बनाते हैं. इन केस ऑफ प्लांट्स हमने वीट जो है एग्जाम्पल दी है. फॉर एग्जाम्पल वीट, व्हेन वीट. तो जब हमारे माइंड में ये वीट आता है तो हम उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं जो वीट में प्रेजेंट रहते हैं. जब अगर मैं आपको वीट बोलूंगा तो आप राइस के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं सोचेंगे. तो दैट मीन्स दिस इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये हमें इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग करते हैं. अब ये कैटेगरीज जो है, ये कैटेगरीज या ये ग्रुप्स जो हैं हमने जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हमने ग्रुप्स बनाए हैं. ये these categories which are made on the easily observable characters are known as taxa. हर किसी ग्रुप में ये कैटेगरीज जो है या ये जो ग्रुप है, प्लांट जो है ये ग्रुप है, एनिमल अपने तरीके से ग्रुप है. एनिमल में जब हम डॉग्स की बात करेंगे अपने तरीके से अलग ग्रुप है, कैट्स अलग ग्रुप है. प्लांट्स का जब हम सोचेंगे तो वीट उसमें अपना ग्रुप बनाता है. तो इसमें जो है ये कैटेगरीज जितने भी हम बनाते हैं इन सारे कैटेगरीज को हम टैक्सा बोलते हैं. और ये टैक्सा जो है ये हर किसी कैटेगरी में अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग होते हैं और ईच कैटेगरी को आप टैक्सा मानते हैं. एंड दिस क्लासिफिकेशन, द characteristics of the
the characteristics of each categories the characteristics of each categories at different levels help us to classify the organisms into different taxa. This classification of organisms is known as taxonomy. इसका ये मतलब है कि जब हम कैरेक्टर्स हर किसी कैटेगरी में जो है अलग अलग लेवल पर देखते हैं और ये कैरेक्टर्स को स्टडी करना, ये ऑब्जर्व करना, इससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ टैक्सा में, और ये क्लासिफिकेशन जो है इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी जो है